السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک نیورون، نرو اور گینگلیا کے سلسلے میں ہے۔ آج کے لیکچر میں نے 3 ٹاپک شامل کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیورون، نرو اور گینگلیا کا چونکہ آپس میں تعلق ہے اور تینوں کو بیک وقت پڑھنے سے سمجھنے میں پھر آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نیورون کی طرف آتے ہیں۔ A neuron is the basic unit of structure and function of the nervous system. نیورون یہ نروس سسٹم کی اسٹرکچر اور فنکشن کی بنیادی یونٹ ہے۔ یہاں پر بورڈ پر ایک نیورون کا جو شکل ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ نیورون عام سیل سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ عام سیل تقریباً یا گول ہوتے ہیں یا لمبے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو نیورون سیل ہے اس کے 2 پارٹس ہیں، ایک یہ والا پارٹس اور دوسرا یہ والا پارٹس۔ یہ جو پارٹس ہے اس کا، یہ سیل باڈی اس کا کہلاتا ہے، اور پھر اس سیل باڈی سے اوپر کیا ہے، چھوٹے چھوٹے فائبر، گچھوں کی شکل میں فائبر نکلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ایک اس طرح لمبا فائبر اس طرف دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اس کا جو باڈی سیل ہے اس کے ارد گرد تو چھوٹے چھوٹے، لیکن ایک لمبا فائبر اس سے نکلتا ہے۔ جس طرح عام سیل کے درمیان ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے علاوہ اس میں مائٹوکانڈریا، گالجی باڈیز، اینٹوپلازم، ریٹیکولم اور یہ چیزیں، یہ جو آرگن ہوتے ہیں یہ اس سیل میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس سیل میں وہ بھی سارے چیزیں شامل ہیں، لیکن یہاں پر اس کا صرف ہم نے نیوکلیس دکھایا ہے۔ تو اس کے باڈی سیل میں یہ نیوکلیس ہے، اور اس کے ارد گرد جو آپ کو شاخیں نظر آ رہی ہیں، اور ان شاخوں سے پھر وہ فائبر نکلے ہیں۔ ان فائبر کو یا ان ریشوں کو ڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔ اور اس طرح جو ایک لمبا ریشہ ہے، اس طرح یہ جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، اس شکل کو ایکزون کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایکزون ہے۔ یہ ایکزون جو ہوتا ہے یہ تقریباً 0.3 سے 1.5 سینٹی میٹر تک لمبا ہو سکتا ہے، یعنی لمبا ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 2 ملی میٹر تک بھی لمبے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی لمبائی ہے، اور اس ایکزون پر جگہ جگہ یہ مستطیل دکھائی دے رہے ہیں، مستطیلی شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، مستطیلی شکلیں، اور ان مستطیلی شکلوں کے درمیان میں گول دائرے ہیں۔ تو یہ جو گول دائرے ہیں یہ اصل میں شوانز سیلز ہیں، یہ شوان سیل ہیں، اور اس شوان سیل کے ارد گرد جو مستطیلی شکلیں ہیں یہ شوان سیل کے مائلین شیٹ کہلاتے ہیں۔ مائلین شیٹ اصل میں فیٹ اور پروٹین سے بنا ہوتا ہے،
اور یہ श्वान सेल का क्या है, एक हिस्सा होता है। और ये जो माइलिन शीट जो है, इस माइलिन शीट जो होता है ये एक्सोन के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है। यहाँ पर एक लिपटा है, यहाँ पर इसका जो माइलिन शीट इसका है वो इसके गिर्द लिपटा होता है। तो ये एक माइलिन शीट जो है इसकी लंबाई तकरीबन 20 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। फिर इस माइलिन शीट तो है या श्वान सेल जो होते हैं इसके दरमियान एक गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है। इस गैप को नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, नोड ऑफ रनवियर। और इस गैप की जो लंबाई होती है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है, ये लंबाई। तो इसके बाद ये जो आखिरी हिस्सा है, और इस आखिरी हिस्से को एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। और एक्सोन टर्मिनल के आखिरी सिरों पर जो है, यहाँ पर भी इस किस्म के क्या है फाइबर निकले हैं, और फाइबर के आखिरी सिरों पर गोल दायरे जो हैं इसको वेसिकल्स कहते हैं, ये वेसिकल होते हैं। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि न्यूरॉन जो है ये एक सेल है, ये एक सेल है, और दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखें ये श्वान सेल दिखा रहे हैं कि इस पर देखें ये श्वान सेल है, ये श्वान सेल है, ये बहुत से श्वान क्या होते हैं सेल यहाँ पर होते हैं। तो फिर ये किस तरह ये एक सेल हो गया। तो बात यह है कि ये श्वान सेल जो हैं ये इस न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ये न्यूरॉन जो है ये सिर्फ एक्सोन पर मुश्तमिल है, और न्यूरॉन सेल ये श्वान सेल जो हैं ये इस न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। ये यहाँ पर क्यों होते हैं, यहाँ पर क्यों इसके गिर्द लिपटे हुए हैं ये श्वान सेल? क्योंकि श्वान सेल के गिर्द जो माइलिन शीट होता है, इस माइलिन शीट की ये खासियत है कि ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, ये फैट और प्रोटीन से बना होता है। और इंसुलेटर के तौर पर क्या करता है, काम करता है। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स इसको स्पीडी करने में, इसको तेज करने में क्या करता है, मदद करता है। और ये माइलिन शीट ये स्पीड को क्या करता है, तेज करता है। चूंकि ये माइलिन शीट ये श्वान सेल तैयार करते हैं, तो इसलिए ये माइलिन शीट श्वान सेल का हिस्सा है। वो श्वान सेल के अलावा दूसरे सेल ये माइलिन शीट तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर श्वान सेल का रैपिड होना, यहाँ पर इसका लिपटना क्या है, ये ज़रूरी है। क्योंकि इसकी वजह से एक्सोन में क्या होता है, इम्पल्स वो तेज़ी के साथ क्या होता है, आगे चलता है। असल में ये जो डेंड्राइड दिखाए गए हैं, डेंड्राइड न्यूरॉन का ये हिस्सा जो होता है ये बाहर से पैगाम इलेक्ट्रिकल की शक्ल में या केमिकल की शक्ल में क्या करता है, ये पैगाम क्या करते हैं, वसूल करते हैं। ये हिस्सा जो है ये पैगाम वसूल करता है। और ये जो इसका एक्सोन है, तो ये एक्सोन के ज़रिए ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है वो आगे की तरफ क्या करता है, वो भेजता है। और ये उस वक्त तेज़ी के साथ ये आगे की तरफ भेज सकता है, हाई स्पीड के साथ, जब इसके गिर्द क्या हो, माइलिन शीट हो, यानी श्वान सेल हो। तो श्वान सेल इसको सिर्फ तेज करने, श्वान सेल ये न्यूरॉन सेल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ इसके मददगार है, इसको हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक नर्व्स होता है या
इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है या नर्व इम्पल्स जो होता है, इसको तेज करने में सिर्फ क्या करते हैं, मदद देते हैं। अब ये जो गैप्स हैं, इन गैप को नोड ऑफ रनवियर कहते हैं, और इस गैप्स यहाँ पर चैनल्स होते हैं। ये चैनल जो हैं यहाँ पर पोटाशियम और सोडियम और पोटाशियम के आयन जो होते हैं, ये एक्सोन के अंदर और बाहर आते जाते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल पैदा होता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल, ये सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, ये इसकी आगे तफसील आ रही है, तो वो आगे अंदर एक्सोन के अंदर और बाहर निकलते रहते हैं। तो न्यूरॉन से जो है स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी 4 किस्में हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी 4 किस्में हैं, और फंक्शनल के लिहाज से इसकी 3 किस्में हैं। तो सब फंक्शनल के लिहाज से यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 वो किस्में मैंने दिए हैं, 4 टाइप्स यहाँ पर। सिर्फ इसके नाम और शक्लें, बाकी तफसील यहाँ पर इसमें शामिल नहीं है। ये जो इस शक्ल का जो क्या होता है, न्यूरॉन होता है, इसको यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और जो इस शक्ल का होता है, इसमें ये सेल बॉडी जो है दरमियान में है, इसको बाईपोलर कहते हैं। और यहाँ पर ये तीसरा जो है, इसको सोडो यूनिपोलर कहते हैं, और इसकी सेल बॉडी इस किस्म की होती है, और यहाँ पर श्वान सेल नहीं होते। यहाँ पर फिर ये मल्टीपोलर है, ये बिल्कुल इस न्यूरॉन की तरह है, और ये जो न्यूरॉन है यहाँ पर हमने दिखाया है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन कहलाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी ये 4 किस्में हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, सोडो यूनिपोलर और मल्टी पोलर न्यूरॉन है। अब हम इसकी फंक्शन के लिहाज से इसकी जो टाइप्स है इसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पर एक सेंसरी, पहला जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाता है, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स है, तीसरा एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है। तो सेंसरी न्यूरॉन से क्या मुराद है और इसका क्या फंक्शन है? तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है, इट कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंस ऑर्गन से पैगाम लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पैगाम पहुंचाते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये सेंसरी न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट एक्सोन एंड सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी इसका जो एक्सोन होगा वो छोटा होगा, और इसके जो डेंड्राइट्स होंगे वो एक डेंड्राइट होगा, ये एक होगा, सिंगल होगा, और ये क्या होगा, लॉन्ग होगा। तो ये सिंगल लॉन्ग डेंड्राइट और स्मॉल या शॉर्ट एक्सोन पर ये न्यूरॉन क्या है, मुश्तमिल है। इस तरह मोटर न्यूरॉन जो होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये टेक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पैगाम लेकर इफेक्टर तक, यानी आज़ा तक या मसल तक क्या करते हैं, वो पैगाम पहुंचाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग एक्सोन एंड मेनी शॉर्ट डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी इसका जो एक्सोन होगा वो लंबा होगा, और इसका जो डेंड्राइट्स होंगे वो मेनी होंगे लेकिन शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे होंगे लेकिन क्या होंगे, ज्यादा डेंड्राइट्स होंगे लेकिन शॉर्ट होंगे। इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद एसोसिएटिव न्यूरॉन है। एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है, इसका फंक्शन लिंक
sensory and motor neuron with each other. इसका फंक्शन ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में लिंक करना होता है, आपस में इसका मिलाना है, आपस में इसका राब्ता कायम करना, ये इसका फंक्शन है. और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो शार्ट डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. इसका एक्सोन भी शार्ट होता है और इसके डेंड्राइट्स भी क्या होते हैं, वो भी छोटे होते हैं. यानी दोनों इसके छोटे हैं, डेंड्राइट भी और एक्सोन दोनों हिस्से क्या होते हैं, वो छोटे होते हैं. अब हम नर्व की तरफ आते हैं और गैंग्लिया की तरफ आते हैं. तो यहाँ पर जो ये एक एक्सोन न्यूरॉन जो शक्ल में दिखाया गया है, ये न्यूरॉन है. और न्यूरॉन के जिस तरह के हमने पढ़ा, न्यूरॉन के दो बड़े हिस्से होते हैं, एक एक्सोन वाला हिस्सा और एक क्या है, सेल बॉडी वाला हिस्सा है. तो अब अगर दोनों को आपस में अलग किया जाए, अलग, ये एक्सोन वाला और ये बॉडी वाला हिस्सा, अब अगर इस तरह मतलब हमारे पास अगर क्या हो, सैकड़ों या हजारों क्या हो न्यूरॉन हो, और इन सब के एक्सोन को क्या किया जाए, अलग किया जाए और इससे एक क्या की जाए, एक बंडल बनाई जाए. तो एक्सोन, सिर्फ एक्सोन का हिस्सा जो है इसका, न्यूरॉन के एक्सोन का जो हिस्सा है, अगर इससे क्या बनाया जाए, एक बंडल बनाया जाए, तो इस बंडल का नाम वो नर्व कहलाता है. इस बंडल के इर्द क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू की एक प्रोटेक्टिव वो मेम्ब्रेन होती है. ये जो नीले रंग से दिखाई गई है, ये एक मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से क्या है, ये मेम्ब्रेन बना है. इस तरह अगर इसके बॉडी जो है, सेल बॉडीज हैं, अगर इन सेल बॉडी को बहुत से न्यूरॉन के सेल बॉडी को का इसका अगर एक ग्रुप बनाया जाए, तो यहाँ पर एक 2 3 4 5 6 महीने दिखाए हैं. ये क्या है, न्यूरॉन के सेल बॉडी का एक ग्रुप है. अगर सेल बॉडी का ग्रुप बन जाए और इसके इर्द इसी तरह प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाए है, जो कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल हो, तो फिर इस ग्रुप का नाम जो है, ये सेल बॉडी पर जो यहाँ पर जो ग्रुप मुश्तमिल है, इस ग्रुप को गैंग्लिया का नाम दिया गया है. इसको गैंग्लिया कहते हैं. तो नर्व और गैंग्लिया में फर्क ये है कि नर्व जो होते हैं वो न्यूरॉन के एक्सोन पर मुश्तमिल होते हैं. ये न्यूरॉन के एक्सोन का क्या है, एक ग्रुप होता है, एक बंडल होता है. और गैंग्लिया जो होते हैं, ये न्यूरॉन के जो सेल बॉडी हैं, सेल बॉडीज जो हैं, एक नहीं बहुत से सेल बॉडीज जब आपस में इकट्ठे हो जाए, ग्रुप बनाए और इस ग्रुप के इर्द गिर्द क्या बन जाए, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यानी कनेक्टिव टिश्यू का एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाए, तो इस ग्रुप को फिर गैंग्लिया कहते हैं. अब नर्व जो होते हैं, जो कि ये एक्सोन के बंडल होते हैं, एक्सोन पर मुश्तमिल बंडल होते हैं. इसके 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 सेंसरी नर्व्स, नंबर 2 मोटर नर्व्स, नंबर 3 मिक्स्ड नर्व्स. अब सेंसरी नर्व्स जो होते हैं, ये कौन से एक्सोन से ये बने होते हैं, तो it contains the exome of sensory neurons. ये जो सेंसरी न्यूरॉन है यहाँ पर, और ये सेंसरी न्यूरॉन का क्या है, स्ट्रक्चर है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सोन का हिस्सा होता है, ये सेंसरी नर्व्स इसी सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन पर मुश्तमिल होते हैं, इसके बंडल से ये बनते हैं.
इस तरह जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन, ये मोटर नर्व्स, ये मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सोन होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन का एक एक्सोन यहाँ पर हमने पढ़ा, ये मोटर एक इसका एक्सोन है। तो इसका स्ट्रक्चर है, ये मोटर न्यूरॉन का क्या है, एक सेल दिखाया गया है। तो ये इसका जो एक्सोन है, ये मोटर न्यूरॉन इस मोटर नर्व्स इन मोटर न्यूरॉन के एक्सोन से क्या होते हैं, बने होते, इसके बंडल पर ये मुश्तमिल है। यानी इट कंटेन्स द एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स ओनली, इस पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह मिक्स्ड नर्व्स हैं। मिक्स्ड नर्व्स जो होता है, इसमें ये सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन और मोटर न्यूरॉन का जो जिसके जो एक्सोन होते हैं, इन दोनों से मिक्स्ड नर्व्स बने होते हैं। यानी मिक्स्ड नर्व्स जो होता है, इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सोन से बना होता है। तो ये इसकी क्या है, इसके 3 टाइप्स हो गए। इस तरह गैंग्लिया जो है, इसके यहाँ पर हमने सिर्फ 2 टाइप्स दिए हैं। एक को कहते हैं सेंसरी गैंग्लिया और दूसरे को कहते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया। तो ये जो सेंसरी गैंग्लिया होते हैं, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन की 4 साख्तें मैंने दिखाई थी, सेंसरी न्यूरॉन। अब ये इन सेंसरी न्यूरॉन में क्या होता है, यूनिपोलर और सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन है, ये इसमें यूनिपोलर, ये वाला यूनिपोलर और ये जो सूडो यूनिपोलर है, इसके जो सेल बॉडी होते हैं, यानी इसका सेल बॉडी ये है, इसका सेल बॉडी ये है, तो इन सेल बॉडी के ग्रुप पर क्या होते हैं, ये सेंसरी गैंग्लिया मुश्तमिल होते हैं, ये सेंसरी गैंग्लिया। और दूसरा जो गैंग्लिया है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो है, वो क्या है, वो सिर्फ मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है, या ये मैंने बताया ये जो शक्ल में दिखा, ये मल्टी क्या है, पोलर न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इसकी जो बॉडी होती है, इन बॉडी के ग्रुप्स पर क्या होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं। और इसका काम क्या है, these ganglia are involved in the autonomic नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, काम करता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि दिमाग के अंदर वो क्या करता है, वो काम करता है। तो इस किस्म की गैंग्लिया को ऑटोनोमिक गैंग्लिया का नाम दिया गया है। अब हम नर्व और गैंग्लिया, ये तो फर्क तो हमने बता दिया कि नर्व जो है वो न्यूरॉन के एक्सोन बंडल होते हैं, और जो गैंग्लिया होते हैं वो इसी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है, इसके ग्रुप पर क्या होते हैं, मुश्तमिल हैं। वो सेल बॉडी का ग्रुप होता है, और ये क्या होता है, ये एक्सोन का ग्रुप या एक्सोन का क्या होता है, बंडल होता है। और अब दोनों का जो फंक्शन है, वो इसमें क्या फर्क होता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, और इसी तरह न्यूरॉन का फिर क्या फंक्शन होता है। और एक तरफ यहाँ पर तो सेंसरी न्यूरॉन्स है, एक तरफ हम सेंसरी नर्व्स पढ़ते हैं। तो नर्व्स और गैंग्लिया जो है,
اس میں فرق یہ ہے کہ نرو کا کام پیغام کو لے جانا ہے، یعنی یہ بالکل یہ پاتھ وے کی طرح کام کرتے ہیں. اس کا فنکشن ایک پاتھ وے کی طرح، ایک روڈ کی طرح ہے. روڈ جس طرح ایک روڈ ہوتی ہے تو یہ بالکل روڈ کی طرح ہے. اس کا کوئی دوسرا فنکشن نہیں ہے، صرف روڈ ہے. اور روڈ کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس پر گاڑیاں ادھر ادھر کیا ہوتی ہے، دوڑتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. روڈ کہیں پر نہیں جاتا، بس روڈ اسی جگہ پر ہوتا ہے، صرف گاڑیاں اس کے اوپر چلتی ہے. تو یہ جو نرو ہوتے ہیں، نرو بالکل روڈ کی طرح ہے، پاتھ وے کی طرح ہے، اس پر گاڑیاں چلتی ہے. گینگلیا جو ہوتے ہیں، گینگلیا کا کام، یہ گینگلیا اسی نرو کے جو ہوتا ہے، اس نرو میں لگے ہوتے ہیں یہ گینگلیا. اور یہ گینگلیا کیا کرتے ہیں، اس کا کام بالکل ایک سوئچ کی طرح ہوتا ہے. جس طرح ایک تار میں سوئچ لگے ہوتے ہیں اور سوئچ کی مدد سے اس تار میں کرنٹ کو کیا کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے، یا اس کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہ گینگلیوں کا کام بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک ریلے کی طرح کام کرتے ہیں. یہ ریلے ہے، یہ کنٹرول کرتے ہیں جو یہاں پر جو الیکٹریکل امپلسز جب کیا ہوتے ہیں، نرو میں سے گزرتے ہیں، تو یہ گینگلیا کیا کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور اس کی مثال ہم ایک پولیس کا ٹریفک والا پولیس جو ہوتا ہے، ٹریفک، اس کی مثال اس کی طرح ہم دے سکتے ہیں. یہ روڈ ہے اور نرو روڈ کی طرح ہے، اور یہ گینگلیا کیا ہے، یہ پولیس کی سپاہی کی طرح ہے. یہ روڈ پر جو گاڑیاں چلتی ہیں، یہ پولیس کا سپاہی جو ہوتا ہے، اس کو کیا کرتا ہے، یہ ٹریفک کو کنٹرول کرتا ہے. مطلب اس کو کسی وقت بھی ٹریفک کو روڈ کے اوپر جب جائے اس کو بند بھی کر سکتا ہے، اس کو کھول بھی سکتا ہے. آگے جب اگر خطرہ ہو یا کوئی رش ہو یا اس طرح ہو تو وہ ٹریفک کو عارضی طور پر کیا کرتے ہیں، روڈ کو بند کر دیتے ہیں، ٹریفک کو بند کرتے ہیں. یعنی جو الیکٹریکل امپلسز ہوتے ہیں، اس کو روک، وہاں پر یہ گینگلیا کا کام ہوتا ہے اس کو روک دینا. یا ایسا ہو کہ بہت زیادہ امپلسز آ رہے ہوں یا زیادہ جا رہے ہوں، تو گینگلیا کا کام اس کو اعتدال پر لانا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. یہ اس کا فنکشن ہے. اچھا، تو پھر یہ نیوران کا کیا فنکشن؟ نیوران جو ہے، اچھا، اس گینگلیا کا ایک اور کام بھی ہے، یہ ریفلیکس ایکشن کے وقت بھی وہاں پر کیا کر سکتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں بات وہاں پر، کیونکہ ریفلیکسیشن میں بہت تیز عمل ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے اسپائنل کارڈ سے پہلے یا سینٹرل نروس سسٹم تک پیغام پہنچنے سے پہلے جو الیکٹریکل امپلس ہوتا ہے، اس سے پہلے گینگلیا کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سیل باڈی موجود ہے اور اس میں پروسیسنگ کا عمل ہو سکتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو وہ یہاں پر خود فیصلہ کر کے ایفیکٹر کو کیا کرتے ہیں، آرڈر جاری کر دیتے ہیں. تو ریفلیکس ایکشن جو ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ حصہ لیتے ہیں. تو یہ جو یہاں پر جو نیوران ہوتے ہیں، اصل میں نیوران جو ہیں یہ سیل باڈی اور ایکزون دونوں پر مشتمل ہوتے ہیں. تو اس میں پروسیسنگ کا کام بھی ہوتا ہے. یہ جو پیغام میسج آ جاتا ہے تو اس پر کیا کرتے ہیں، وہ مختلف پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں، اور پروسیس کے بعد یعنی اس میں پروسیسنگ کا عمل ہوتا ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس ایکزون کے راستے سے کیا کرتے ہیں، باہر نرو تک پہنچاتے ہیں، نرو کو یہ دیتے ہیں پیغام. اور پھر نرو کیا کرتے ہیں، نرو کے اوپر یہ پیغام کیا ہوتا ہے، ایفیکٹر تک یا سینٹرل نروس سسٹم سے کیا ہوتا ہے، ایفیکٹر تک جاتا ہے، یا اس طرح سینٹرل نروس سسٹم وہ ایفیکٹر تک بھی جا سکتا ہے. اور سینسری آرگن سے کیا ہوتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم تک اس طریقے سے. لیکن بیجا نرو کے ذریعے اس کو بھیجا جاتا ہے. تو اس طرح دماغ کے جو سیل ہوتے ہیں وہ
क्या है ये न्यूरॉन पर तकरीबन इंसानी दिमाग जो होता है एक करब न्यूरॉन पर क्या होता है, सेल्स पर क्या होता है, ये मुश्तमिल होता है। और इसमें इंसानी जो दिमाग होता है इसमें दोनों किस्म के, वहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे, एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है। जो ग्रे मैटर होता है वो सेल बॉडी पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। और इसी तरह जो वाइट मैटर होता है वो एक्सोन पर क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। तो यही इसका है कि इसमें प्रोसेसिंग का अमल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल रोड की तरह है, ये सिर्फ पाथवे हैं और ये सिर्फ पैगाम को ले जाने में क्या करते हैं, वो मदद देते हैं। और गैंग्लिया जो होता है ये पैगामात को, या इलेक्ट्रिकल नर्व जो होते हैं, या इसको क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जो होता है इसको कंट्रोल करना, ये क्या है, गैंग्लिया की जिम्मेदारी। इसके लिए और भी गैंग्लिया के फंक्शन है, तो इसको आप आगे जाकर तफसील के साथ पढ़ेंगे। और यही क्या है, तीनों में क्या है फर्क है। तो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के दो पार्ट्स हैं। अगर एक पार्ट्स वाले हिस्से को के आपस में ग्रुप बनाए जाएं तो इसको नर्व कहते हैं, और अगर दूसरे हिस्से को सेल बॉडी वाले हिस्से के ग्रुप बनाए जाए तो इसको गैंग्लिया कहते हैं। नर्व का काम सिर्फ इस पाथवे की तरह है, एक रोड की तरह है। यहाँ पर इसमें प्रोसेसिंग का अमल नहीं होता। ये किसी पैगाम को, किसी मैसेज को इसका तज्जिया नहीं कर सकते, इस पर कोई राय नहीं दे सकते, ये इसका काम नहीं होता। सिर्फ पैगाम को ले जाना इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा गैंग्लिया है। गैंग्लिया ये जो नर्व के ज़रिए जो नर्व इम्पल्सिस जाते हैं, तो इन नर्व इम्पल्सिस को क्या करना, कंट्रोल करना, ये स्विच की तरह काम करते हैं। ये इसकी क्या, इसका फंक्शन में शामिल है। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।